Appeal for the funds. My dear elders and other esteemed members, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a very great and happy occasion to see such a huge assembly of our members, our community discuss and decide for a way forward. जो भी हम हमारे जो सीनियर स्पीकर्स है सब कुछ एक नजरिया हमने पेश किया. So and other speakers, and you can realize the efforts in initiating the process and bringing this foundation to this stage. Just speakers highlighted the reasons for the present scenario and state affairs of our community. जैसा आईना हमको दिखाया है आज के दुनिया का, आप सब जानते हैं, and we have to focus on the development and upliftment of our community through education. And representation of our community is very minimal in medical, legal profession, state and central civil services, police and judiciary, media and journalism. इन stages में, इन fields में बहुत कम दिनार में, जैसा सर ने बताया, बहुत कम percentage के लोग मुस्लिम्स हैं. Need of the hour is to lift literacy rate of our community, increase percentage in higher education and employment. We need to stand on our own resources. Community is to wake up. Bright Horizons Foundation is taking the lead. It does not have even its premises, land, building and arranging courses at very reasonable charges need a lot of amount and donations. And task is gigantic, छोटा मोटा काम नहीं है ये, and it is possible for a few individuals. No, ये कुछ इंसानों से हो सकता है या सबसे हो सकता है, सबका हाथ इसमें पड़ना चाहिए, सब हाथ मिला के काम करना चाहिए. So, and we Muslims are always at the forefront for a noble cause. We are very generous as a community and prepared to sacrifice for the future of our children. Have you ever seen any Sardarji begging? Any Sardarji begging? देखा है आपने? नहीं ना? Community takes care of other basic needs. You all know that the TVS, but how many of you know its origins? When Brahmins were contributions, start their own venture and generate employment and opportunities. This is called dedicated collective effort. More than 95% of it into thousands of crores of rupees. It has land worth of crores of rupees in Annasalai, Chennai, heart of the city. So we all use oil for our vehicles, but how many of us know it oozes in drops before accumulating in the reservoirs over a long period of time? We can see results of our dedicated efforts in a span of time, and we will be happy one day to see fruits of our efforts in the form of representation of the members in various fields. So let us not bother और खुद पे खुद एक जरिया बनता जाएगा. What Allah sees is our intention but not the amount. Let us take lesson from the efforts of a small bird when Ibrahim alayhi salam was thrown into fire by King Namrud. A small bird was carrying a drop of water in its beak and to quench the fire, knowing fully well that a single drop could not quench the fire, but it wanted to testify before Allah that it contributed to quench the fire and save Ibrahim alayhi salam. So I have two questions and I want to hear your response about it. That do you agree that Bright Horizons Foundation is sincerely trying to uplift our community through education? क्या आप सोच समझ से बोल सकते हैं कि Bright Horizons Foundation सच्चे दिल से कोशिश कर रहा है? And do you want to see more of our children in various fields, medical professions notably? हर एक profession में हमारे बच्चों को क्या आप देखना चाहते हैं? And do you want to extend your helping hand to carry forward the efforts of Bright Horizons Foundation? क्या आप आगे बढ़ के इस नेक राह पे चलने के लिए तैयार हैं? When your answer is yes, then let us show our commitment to common cause and declare our contributions before leaving this premises. Then don't bother for the amount of contribution, but contribute to please Allah. So may Allah accept our good intentions and efforts and bless us success in all efforts. Ameen summa ameen.
सादिया जो है, वी आर प्राउड ऑफ सादिया, एंड उनका अगर प्रोफाइल देखेंगे तो बहुत सारे मेडल्स उन्होंने अवार्ड रिसेंटली इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने 3 गोल्ड मेडल लेके आया था, और ऐसा नहीं नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे, एंड आई थिंक शी इज फ्रॉम दुआ कीजिएगा कि ऐसे बच्चे हमारे सोसाइटी में हैं, रियली वी आर प्राउड ऑफ यू, कंग्रेचुलेशन। I am very thankful that Bright Horizons Foundation इतना support करते हैं for the poor people, keep supporting like that, and ऐसा दूसरे not in sports, in different arts and education में ऐसा डेवलप होने से आपको बुलाया तो दूसरे स्टूडेंट्स को दूसरे बच्चे का भी इंस्पायरेबल होते, ऐसा बुलाते हो, ऐसा ना भी इंस्पायर होता, हमारा भी हवी हवी करना का भी इंस्पिरेशन हमारा भी करना का आता होता। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एशियन पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप December 24 to 30 इस्तांबुल सिटी टर्की कंट्री में हुआ था। ये टर्की कंट्री कैपिटल इस्तांबुल में हुआ था। ये इसमें 3 टाइटल, स्ट्रॉन्ग गोल ऑफ एशिया में 3rd स्ट्रॉन्ग गोल ऑफ एशिया टाइटल आया था मुझे। ये पावर लिफ्टिंग गेम है। पावर लिफ्ट में 3 सिस्टम्स थे, स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट। स्क्वाट में गोल्ड मेडल, बेंच प्रेस में सिल्वर मेडल एंड डेड लिफ्ट में गोल्ड मेडल आया था। ओवरऑल टोटल में गोल्ड मेडल आया था। और इसी के साथ स्ट्रॉन्ग गोल ऑफ एशिया, 3rd स्ट्रॉन्ग गोल ऑफ एशिया टाइटल आया था। कामयाबी थे। और नेक्स्ट मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी किया था बिकॉज ऑफ दैट ही गॉट डॉक्टरेट, ये किताब पढ़ने थी। ये ऐसे नौजवान हमारे कम्युनिटी में हैं, रियली वी आर प्राउड ऑफ मिस्टर वाहिद शकील अहमद। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dr. Wahid Shakil Ahmad. Right now I am working as an associate dean, as of assistant professor at KL University, Department of Commerce. So in addition to this, my personal degree, so I have completed a doctorate in the aspects of empowerment of Muslim minorities, and especially the respect of Andhra Pradesh. I have selected 4 districts based upon this coastal Andhra and Rayalaseema regions. ये डॉक्टरेट डिग्री होने के लिए 2 मकसद है। एक मकसद है मेरा फैमिली को एम्पावरमेंट करना, जो मेरी बीवी बच्चा को करना, ये तो पहला मकसद जो कुछ भी करता हूँ। और दूसरा मकसद है मेरा काम जो मुस्लिम माइनॉरिटीज को यहाँ पर लगा कर बिठाना है, यहाँ पर दिखा कर बिठाना है, तो ये तो मेरा मकसद है। तो इसके लिए मैं इस 7 साल 2012 से 2019 तक मेरा PhD डिग्री का रात को मैं कभी भी नहीं सोता, मैं जागते रहता और मेरी बीवी को जगाता इसके लिए, मेरे PhD डिग्री के लिए। किसके लिए? मेरा काम को डेवलप करना। मुस्लिम माइनॉरिटी जो कुछ भी बोल दिया सर ने, सच्चा कमेटी ऐसे कि बहुत कुछ रिपोर्ट डाल दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक हुआ? अगर से इम्प्लीमेंट हो गया तो हम वहाँ पर नहीं रहते, यहाँ पर रहते। थैंक यू सो मच। Objective of this Bright Horizons Foundation to provide these services. Here I am going to provide my contribution as a Muslim minority scholar. So knowledge sharing कर सकता हूँ, इसी जरिए मैं इस फाउंडेशन का हिस्सा हूँ। थैंक यू सर। इसीलिए 1-2 मिनट में खत्म करता हूँ। जो बंदा बंदों का जो हाथ अदा नहीं करता, वो अल्लाह का हाथ अदा नहीं कर सकता है। तो बहुत सारा वक्त जो है, ज्यादा वक्त से ज्यादा वक्त करने के बावजूद भी जो है आप लोग बैठे, बहुत कोशिश से बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं जो है मैं अपनी ब्राइट हॉरिज़न टीम और सारे सबके तरफ से जो है आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुशी से जो है मैं खुशी से मेहमान समीर अहमद सिद्दीकी साहब जो है वो दिल्ली से आए हैं ये प्रोग्राम के लिए,
उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में हमारे दोस्त जो है अब्दुल वासिर साहब साइंटिस्ट जो है, उनको भी जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह जो है हमारे नईमुल्ला साहब और डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब, डॉक्टर शमसुद जो है मैं जो है अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो है इस प्रोग्राम के लिए जो है बहुत सारा बैकग्राउंड वर्क किए हैं हमारे साथी, और उन सबको नाम लेना तो मुश्किल है। पहला जो है 22 तारीख का डेट हम लोग तय किए थे, क्योंकि कोविड का जो रिस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं तो प्रीपोन करना पड़ा और इसके वेन्यू का जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो इस सारे तकालीफ के बावजूद भी जो है हमारे साथी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत करके जो है इस काम को पूरा किया। मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। इस समय अपनी बात को खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, Master. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله يا أرحم الراحمين يا غفور رحيم يا كريم. या अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है, आपने ये मौका दिया यहाँ पे हम सब जमा हुए। या अल्लाह एक कोशिश है, या अल्लाह एक दर्द है दिल में। या अल्लाह या करीम या रहमान, ये उम्मत की फ़िक्र में जुड़े सब या अल्लाह अपनी उम्मत को ऊपर लाना चाहते हैं। या अल्लाह हम सब की मदद फरमाइए। या अल्लाह हमारे मुश्किलों को आसानी में बदल दीजिए। या अल्लाह इखलास नीयत के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाइए। या अल्लाह ब्राइट होराइजन फाउंडेशन के सारे अरकान की मदद कीजिए। या अर्हमर राहिमीन, मुश्किलों को दूर करिए, मुश्किलों को आसानी में बदल दीजिए। या अल्लाह और उम्मत का जो दर्द लेके जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके ज़िंदगियों में बरकतों से रहमतों से भरपूर उनको उसका सिला दुनिया में और आखिरत में अजर अता फरमाइए। या अर्हमर राहिमीन, या अल्लाह जो भी इसके लिए इसमें हिस्सेदार बन रहे हैं, उनके ज़रिए और भी दूसरे मुसलमान गुंटूर से भी बाहर जितने भी मुसलमान हैं, उनकी भी मदद फरमाइए। या अर्हमर राहिमीन, जो देने वाले हैं जो लेने वाले हैं, उन सबको एक दूसरे का मददगार बनाइए। या अर्हमर राहिमीन, या करीम इस काम को दूर दूर तक फैला दीजिए, ताकि जो हमारी तमन्ना है उस आप जानते हैं हमारे दिलों का हाल। या अल्लाह आप हमारे दिल का दर्द समझते हैं। या अल्लाह हमें इस काम में जितना आसानी हो सकती उतना आसानी हमें अता करिए। या अल्लाह या रहमान रहीम, हर काम जो आपकी मर्ज़ी से होगा वही होगा, जिसमें आपकी मर्ज़ी नहीं है चाहे लाख कोशिश कर ले वो नहीं होगा। या अल्लाह इसमें आपकी मर्ज़ी डाल दीजिए। या अल्लाह या रहमान रहीम, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस तरह के तालीम की ज़रूरत है, जिस तरह के एक दूसरे को हाथ पकड़कर पूरे समाज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे बिजनेसेस को अडेप्ट करना चाहिए पोस्ट कोरोना के वर्चुअल वर्ल्ड में,
और बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का शऊर बढ़ना चाहिए, डॉक्टर और इंजीनियर बड़े पैमाने पर वर्ल्ड लीडर बनना चाहिए। उसके लिए ये जो कॉन्फ्रेंस आज कानपुर में हुआ है और ब्राइट होराइजन सोसाइटी ने सारे लोगों को जमा किया है, ये एक बहुत काबिल तारीफ़ कदम है। इंशाअल्लाह इसके रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी आएंगे और मैंने देखा कि यहाँ के लोग ज़रूर कुछ करना चाहते हैं और वो करना सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखना चाहते। 2 साल से ब्राइट होराइजन्स जो अच्छे काम कर रहा है, आज उसका स्टेट लेवल पे इनॉग्रेट हुआ है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं उन्हें बड़ी मुबारकबाद। मैं अब्दुल वासिम मोहम्मद, मैं यहाँ गुंटूर में ब्राइट होराइजन फाउंडेशन के इनॉग्रल सेरेमनी में आया हूँ। तो इस फाउंडेशन का मकसद तो आप तमाम सोच चुके होंगे कि अपनी उम्मत को तालीमी शोबे में और तिजारती शोबे में कैसे ऊपर लेकर आना, सोशल एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट किस तरह करना, इसकी कुछ हम ख्याल लोग बैठ के काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। एक इसका ढांचा बनाए और एक इसको होराइजन फाउंडेशन के नाम पे, ब्राइट होराइजन फाउंडेशन के नाम पे इसका आज इफ्तिताह हुआ है अल्लाह की तरफ से। और हमारे हरदिल अज़ीज़ समीर अहमद सिद्दीकी दिल्ली से आए हैं एज ए चीफ गेस्ट। तो हैदराबाद से मैं भी आया हूँ। कहना यह है कि तालीमी शोबे में और तिजारती शोबे में, और इसके अलावा मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबे में हम लोग बहुत पीछे हैं। ज़ाहिर सी बात है, तालीम में नहीं होंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैसे होंगे। पहला मरला तालीम का है, आगे जाके रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो 2019 जुलाई में मैं यूएस से वापस आया और 2020 मार्च में मैं एक ट्रस्ट रजिस्टर किया तेलंगाना स्टेट में, जिसका नाम है SEUMP, एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल। इस ट्रस्ट के तहत हम लोगों की कोशिश है कि हमारे पिछड़े पसमानदगान को हम कैसे मदद करें। पहले हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, लेकिन हमें लगा कि ये बड़ा गार है, जितना भी डालो वो भरेगा नहीं। तो उसके बाद हमने सोचा कि मछली खिलाने से अच्छा है मछली पकड़ना सिखाना। तो इस जाविया में हम लोगों को ट्रेड कैसे करना, तिजारत कैसे करना, बिज़नेस कैसे सेटअप करना, और कुछ लोगों को तिजारत लगा के भी दी। मिसाल के अदरक लहसुन का पेस्ट है, आप घर में बना के कम्युनिटी में सेल करें। तो एक फैमिली को जो ऑटो ड्राइवर था, लॉकडाउन के बाद बेचारों का जो है बिल्कुल ऑटो का कारोबार बंद हो गया, सवारियाँ ही नहीं मिल रही थी, गुजारा ही नहीं हो रहा, हैंड टू माउथ फैमिली थी। तो फिर हमने उनको अदरक लहसुन की पेस्ट का तिजारत सिखा के लगा के दी। तो शुरू में 20 किलो करते थे, अब माशाल्लाह से 100 किलो से ज़्यादा उनका सेल है। और अभी उन्होंने उसको आगे बढ़ा के मिर्ची, ज़ीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, इस तरह का उनका पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है। तो इसी तरह टेलरिंग का है। लेकिन मेरा जो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, जिस मकसद से मैं इंडिया वापस आया, मैं देखा इंडिया में एक्सेप्शनल टैलेंट है मुसलमानों में, इतना अच्छा टैलेंट है, ख़ासतौर से नौजवान लड़के लड़कियों में। तो उनका रिसर्च में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन एंड डिस्कवरीज में हम कैसे उनको पुल अप करें। इस सिलसिले में मेरा ख्वाब है कि मैं जर्मनी में जैसे मैक्स प्लान एकेडमी है, फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट है, इस तरह के बड़े रिसर्च सेंटर हम एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, जहाँ पे हमारे नौजवान लड़के लड़कियाँ जिस भी फील्ड में रिसर्च करना चाहें वो आके विदाउट फियर ऑफ फेलियर वो रिसर्च कर सकें। ये मेरा ख्वाब है और मैं इसको इंशाल्लाह इस्टेब्लिश करूँगा। बहुत बड़ी रिसर्च सेंटर हैदराबाद में होगी, जिसमें ना कि हिंदुस्तान से बल्कि बाहर से भी, दूसरे ममालिक से हमारे लड़के लड़कियाँ आके इसमें रिसर्च कर सकें, इनोवेट कर सकें, डिस्कवर कर सकें, पेटेंट कर सकें। ये इंशाल्लाह हमारा लॉन्ग टर्म मकसद है। आप हमसे भी गुजारिश है हमारे लिए दुआ करें और जितना आप काम कर सकते करें। जज़ाकल्लाह।